Good morning, class. We're continuing with the chapter number 4 of geography, air pressure. Right? In the last class, we discussed what is pressure. Right? Pressure means force exerted by an object per unit area. एक जगह के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर. And how do you feel the pressure? You feel the pressure by measuring the pain. ठीक है. So if the pain is more, that means there is more pressure, and if the pain is less, that means there is less pressure. Okay. Also, the formula of pressure was force divided by area. Okay. And then we did two experiments, one with the books and one with the pencil, and we found the relation between pressure, force and area. Okay, from the first experiment of the books, we are able to find that pressure is more when we have more force, right? And pressure is less when we have less force. Force ज़्यादा होगा, pressure ज़्यादा होगा. Force कम होगा, pressure कम होगा. Okay, and from the second experiment of the pencil, we are able to find that when we have less area, then pressure is more. Okay, and when we have more area, the pressure is less. जगह कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और जगह ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. ओके, एंड इन टुडेज क्लास विल बी मूविंग ऑन टू एयर प्रेशर. ओके, सो विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ एयर प्रेशर. हम एक्सप्लेन कर पाएंगे एयर प्रेशर क्या चीज़ है. ओके, एंड इट्स रिलेशन विद टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर से क्या संबंध है. व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर से आप क्या समझते हो? ओके, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके, कोई चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो जो मेजर करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर. राइट, सो वी आर गोना सी हाउ एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिलेटेड. यू कैन सी द राइटिंग आइकॉन हियर, सो प्लीज टेक 2 minutes to note down today's objective. All right, moving on. Again, we are moving back to last class. In last class, we did a question where we have two divers, right? One was at the top of the ocean and one was at the bottom of the ocean. Now, we were able to find out that this person will have more pressure because there is this much water above him, right? Similarly, this person will have less pressure because there is only less water above him. Okay, and this pressure is called as oceanic pressure. राइट, तो ओशनिक प्रेशर ओशन के अंदर दिखता है. सो लेट्स कम टू नो व्हाट इज एयर प्रेशर नाउ. सो व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर और एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया. ओके, किसी एक जगह के ऊपर एयर कितना दबाव डालता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर. You can see this diagram here. Here we have the different levels of atmosphere. Atmosphere में different levels होते हैं, starting from troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. And over that you have outer space. Right? So there are different layers of atmosphere, and how much force they put on the area below them is called as air pressure. ठीक है? जो atmosphere के different levels होते हैं वो अपने नीचे कितना दबाव डालते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर. अनदर थिंग वी हैव टू नो हियर इज दैट एयर प्रेशर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस. ओके, तो अर्थ के सरफेस पे आप जब खड़े रहते हो एयर प्रेशर सबसे हाई होता है, एंड एज वी गो अप इट डिक्रीजेस. तो मतलब ऊपर चलते जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता रहता है और एकदम ऊपर सबसे कम एयर प्रेशर रहता है. सो लोएस्ट इज एट द टॉप. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई इज दिस सो? ये ऐसा क्यों होता है कि एकदम नीचे लेयर में सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और एकदम ऊपर में सबसे कम प्रेशर होता है, दैट मीन्स लो प्रेशर होता है. पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर 2 minutes एंड कम अप विथ एन आंसर. Okay, let's come back. Now, if you remember in the case of ocean, ocean के केस में देखा था कि डाइवर जितना नीचे रहेगा, okay, he will feel more ocean pressure because उसके ऊपर इतना सारा पानी है, right? और अगर वो ऊपर रहेगा तो वो कम प्रेशर फील करेगा बिकॉज उसके ऊपर पानी कम है.
सेम थिंग हैपन्स विथ एटमोसफियर. आप नीचे रहोगे, इफ़ यू आर हियर, तो यू आर फेसिंग द प्रेशर फ्रॉम एग्जोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर. इन सब लेयर्स का आपको प्रेशर फील हो रहा है. ओके, एंड व्हेन यू आर अप हियर you will not feel any pressure from the atmosphere. So you have the lowest pressure at the top and highest pressure at the bottom. Okay, I hope you are able to understand the details about air pressure. You can see this icon here, so you have to note this down in your notebook. You can draw this diagram also. So in this diagram mainly you have to remember these layers of the atmosphere. Okay, so take 3 minutes to do this. Coming back, now we are going to see an experiment in which we'll find out the relation between pressure, air pressure to be exact, and temperature. ठीक है, एयर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे. Okay. To begin the experiment, you're going to need an empty 2-liter bottle. You're going to take a balloon and you're going to secure it to the mouth of the bottle. Once the balloon is secure, it's time to move on to the next step. For the next step of the experiment, you're going to prepare 2 pans of water. In the first pan, you're going to put ice and cold water. And in the second pan, you're going to put hot boiling water. Because it's hot, you're going to need to use caution with that step. Now, we're going to take our 2-liter bottle with the balloon and we're going to place it into the pan with the hot water and watch what happens. As you can see, the balloon inflates. Now let's take the 2-liter bottle out of the hot water and place it on the table. Now you can see that the balloon stays inflated. Let's put it into the pan with the ice water now. And now you can see that the balloon begins to deflate. Now let's take the 2-liter bottle out of the cold water and place it back on the table. Can you tell me, why does placing the bottle in the hot water cause the balloon to inflate? And then placing it in the ice cold water cause the balloon to deflate? Leave a comment below to submit your guess, and then visit coolscienceexperimentsheadquarters.com to find out the answer. Okay, we just saw the experiment. I'll just quickly summarize what happened in the experiment. ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था मैं थोड़ा शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ. सो वी टेक अ बॉटल, ओके, एंड वी स्टिक अ बलून ओवर इट. एक बलून ऊपर चिपका देते हैं एंड मेक इट एयर टाइट. ठीक है, इसके अंदर का एयर बाहर नहीं जा सकता, इसके बाहर का एयर अंदर नहीं आ सकता. ओके, नाउ व्हेन वी पुट इट इन हॉट वाटर, okay, so what we were able to see that this balloon expands, ये बड़ा हो जाता है. Okay, and if we put it in the cold water, what we'll be able to see is that the balloon shrinks, तो balloon छोटा बन जाता है. Okay, so the main question over here was, why does in hot water the balloon expands and why does in the cold water the balloon shrinks? मतलब छोटा बन जाना. expand मतलब बड़ा होना, shrink मतलब छोटा बन जाना. Okay, now one thing you have to remember is the balloon was airtight, तो इसका अंदर का हवा बाहर नहीं जा रहा था, इसका बाहर का हवा अंदर नहीं आ रहा था. Right, so let us try to understand why does this happen.
Okay, we'll try to understand the relation of air pressure and temperature and explain why the experiment result is as we saw it. एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो हमने देखा वो ऐसा क्यों होता है, वो हम एयर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन से एक्सप्लेन कर पाएंगे. ओके, नाउ वी नो एयर हैज़ एयर मॉलिक्यूल्स. एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, सपोज दिस इज नॉर्मल एयर. ये जो बीच वाला डायग्राम है, दिस इज नॉर्मल एयर. ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स नॉर्मल गैप में हैं. ओके, नाउ हम जब इसको हीट कर देते हैं तो हवा गर्म हो जाता है. राइट, व्हेन वी आर हीटिंग इट द एयर बिकम्स हॉट. सो दिस बिकम्स hot air, and what happens in hot air is it expands. hot air फैल जाता है. Okay, and on the other hand if you cool the normal air, आप एयर को ठंडा कर देते हो, it becomes cold air, right? and cold air shrinks. cold air छोटा बन जाता है, वो कम जगह लेता है. Okay, so if you want to understand this, why does this happen, think of it in this way. आप एक क्लासरूम में हो. Okay, you are with your friends in your classroom. Okay, and we increase the room temperature. ठीक है, तो फैन बंद कर दिया और रूम में हीटर चला दिया. तो आप लोग एक दूसरे से चिपक के बैठोगे कि दूर दूर बैठोगे. Obviously you will sit away from each other, राइट, बिकॉज पास बैठोगे और गर्मी लगेगी, तो दूर दूर बैठोगे. राइट, सो यू विल सिट अवे फ्रॉम ईच अदर. सो एयर मॉलिक्यूल्स भी सेम चीज़ करते हैं. सो व्हेन वी हीट द एयर मॉलिक्यूल्स दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इसीलिए उनका एरिया भी बड़ा हो जाता है. सो हॉट एयर हैज़ मोर एरिया, एरिया उनका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपके क्लासरूम में एसी लगा दें और उसको काफ़ी लो टेम्परेचर कर दें तो आपको ठंडी लगेगी. तो ठंडी में आप लोग पास बैठोगे ताकि आप लोग को ज़्यादा ठंडी ना लगे. राइट, सिमिलरली कोल्ड एयर ऑल्सो डज द सेम. सो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड इट श्रिंक्स, तो उनका एरिया कम हो जाता है ना, कम जगह ले लेते हैं वो लोग, और जब फैलते हैं वो ज़्यादा एरिया लेते हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू प्रीवियस क्लास. लास्ट क्लास में हमने जो पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट करा था उससे हमने एरिया और प्रेशर का रिलेशन फाइंड आउट करा था. राइट, सो व्हेन वी इंक्रीज द एरिया व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर, एंड व्हेन वी डिक्रीज द एरिया व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर. ओके, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है उसको बेस्ड करके. ओके, सो टेक 2 minutes टू फिल दिस. Okay, we'll come back now. Okay, if you have not understood this, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. Okay, in the previous class हमने पेंसिल का एक्सपेरिमेंट देखा था जहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करा था कि if the area is less, अगर एरिया कम होता है उधर पे प्रेशर ज़्यादा होता है. Okay, and when the area is more, the pressure is less. है ना, पेंसिल वाला जो नुकीला साइड है उसका एरिया कम होता है तो वो ज़्यादा चुभता है. Right, it pains more, therefore there is high pressure. Okay, and pencil का जो दूसरा side होता है, it has more area, it pains less, it has less pressure. Okay, so area increases, that means pressure decreases, है ना, और area decreases मतलब pressure increases. Okay, now in the case of air also, cold air takes less area. cold air कम जगह लेता है क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, पास जाता है, तो उसका प्रेशर क्या होगा. ओके, उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो इट हैज़ हाई प्रेशर. सो योर आंसर हियर विल बी हाई. ओके, एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड हॉट एयर जो होता है उसका एरिया बड़ा हो जाता है, वो फैल जाता है. राइट, देयरफॉर इट विल टेक मोर एरिया, दैट मीन्स इट विल हैव लो प्रेशर. ठीक है, सो योर आंसर हियर वुड बी लो. सो कोल्ड एयर सिकुड़ जाता है, कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, देयरफॉर इट हैज़ हाई प्रेशर, एंड हॉट एयर एक्सपैंड्स, हॉट एयर फैलता है. ओके, देयरफॉर इट हैज़ लो प्रेशर.
These are the two main points which you have to remember. Okay, you can see the writing icon here. I hope you have already written this down. So this was the relation between air pressure and temperature. Okay, now let's try to understand a new topic, which is the creation of wind. Now creation of wind हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं air pressure में? Because this is related to this. Wind is created because of air pressure and temperature. कैसे हम अभी देखते हैं. Okay, so you have your normal land, okay, and on any particular day you have the sun, and sometimes you also have clouds in some area, है ना, कुछ कुछ जगह पे क्लाउड्स भी रहते हैं. एंड वी नो दैट क्लाउड्स के अंदर शैडो रहता है, राइट. तो क्लाउड्स जहाँ पे रहता है वो सन को ढक देता है और उधर पे शैडो गिरते हैं. ओके, नाउ इफ़ यू आर ए पर्सन, यू आर स्टैंडिंग बिलो दिस, ओके, एंड योर नेम इज ए, एंड देयर इज अनदर पर्सन, योर फ्रेंड, हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, हुज नेम इज बी. ओके, नाउ टेल मी हु विल फील मोर हॉट. गर्मी ज़्यादा किसको लगेगी, ए या बी को? ओके, ऑब्वियसली बी विल फील मोर हीट, इसको ज़्यादा गर्मी लगेगी बिकॉज वो डायरेक्टली सन के नीचे हैं. ओके, एंड ए विल फील लेस हीट बिकॉज ही इज अंडर द क्लाउड्स. सो सिमिलर थिंग्स हैपन विद द एयर. ओके, द एयर ओवर हियर विल फील मोर हीट. ठीक है, सन के डायरेक्टली नीचे जो एयर है वो ज़्यादा गर्म होगा, so it will become hot air. Okay, and one property of hot air is that it goes up. तो hot air फैलता है और ऊपर चला जाता है. Okay, this you can see while you are steaming the water. आप जब पानी गर्म करते हो तो उससे जो भाप निकलती है, भाप हमेशा ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती है. Okay, so hot air always rises up into the atmosphere. वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है वो. Okay, so hot air goes up into the atmosphere, and just in the last slide we saw hot air के वजह से कौन सा pressure create होता है. So hot air creates a low pressure because it takes up more area. Area ज़्यादा होता है तो pressure low हो जाता है. So hot air goes up into the atmosphere and it creates a low pressure. Okay. On the other hand, below the clouds there will be cold air, है ना, बिकॉज उसके सन का हीट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो इधर का जो एयर होगा दैट विल बी कोल्ड एयर. राइट, नाउ वी नो हॉट एंड कोल्ड आर ऑपोजिट्स. तो हॉट एयर अगर ऊपर जा रहा है तो कोल्ड एयर कहाँ जाएगा? ओके, हॉट और कोल्ड ऑपोजिट है ना एक दूसरे के. तो हॉट एयर अगर ऊपर जाएगा तो कोल्ड एयर शुड कम डाउन. तो ठंडा हवा होता है, ठीक है, तो वो नीचे आ जाता है ग्राउंड की तरफ. ओके, एंड इन द लास्ट स्लाइड वी सॉ कोल्ड एयर की वजह से कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर. ओके, नाउ सी ओवर हियर, इस जगह पे आपका हाई प्रेशर है, इस जगह पे लो प्रेशर है. वन थिंग दैट नेचर ऑलवेज ट्राइज टू डू इज बैलेंस एवरीथिंग. नेचर में हमेशा नेचर हर चीज़ को बैलेंस करने का ट्राई करता है. Okay, so here is a high pressure area and here is a low pressure area. Okay, so what does nature does? Nature tries to balance this both thing. और ये दोनों pressure कैसे balance होगा? It will only happen if the cold air from a high pressure area goes to the low pressure area. High pressure से low pressure में हवा बहती है. Okay, and because of this wind flow we get wind. ठीक है, हवा आप देखोगे तो ठंडी हवा आती है. इट ओनली ब्लोज बिकॉज द एयर इज कमिंग फ्रॉम ए एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड गोइंग टू ए एरिया ऑफ लो प्रेशर. और वो हवा तब तक बहेगा, ओके, इट विल फ्लो टिल बोथ द प्रेशर बिकम्स इक्वल. इन दोनों को इक्वल करने का, बराबर करने का ट्राई करता है, तब तक हवा चलता रहेगा. ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स समराइज दिस इनटू 3 points to be exact. So how do you create wind? Wind का creation कैसे होता है? So basically hot air expands and rises up in the atmosphere. गर्म हवा फैलता है और एटमॉस्फेयर में
ऊपर चला जाता है, ओके, एंड इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर ओवर द एरिया, उस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. ऑलराइट, देन ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, कोल्ड एयर जो होता है वो सिकुड़ जाता है एंड इट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ आ जाता है एंड इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर. ओके, एंड लास्टली टू बैलेंस द प्रेशर डिफरेंस, एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, उसको बैलेंस करने के लिए विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर, इसीलिए आपको विंड मिलता है. ऑलराइट, सो यू हैव टू नोट दिस डाउन in your notebook, okay, and draw this diagram also. So this is the end of today's lesson. Let's summarize what we learned today. We learned about air pressure, okay, we learned about how air pressure and temperature are related, and lastly we learned how wind is created. हवा कैसे create होता है वो हमने आज देखा. Okay, so thank you for coming to this class, okay, and in the next class we'll be learning about air pressure belt.